Today we will solve remaining questions from exercise, miscellaneous exercise. That is question what? 13. Okay. So are you ready now for class? Hello. Tell Yes, me. sir. Okay. Question 13. Remaining question, 3-4 questions are remaining for the miscellaneous exercise. So and one, two, three as possible we will solve some important questions from this chapter. Okay, so here 13. So solve for x, that is we have to find the value of x given 2 tan inverse cos x equals to, because ये धीरे धीरे क्वेश्चन टिपिकल होता जा रहा है ना. So here 13. Okay, so solution. So here given what? 2 tan inverse cos x equals to 2 tan inverse cos x equals to tan inverse 2 cosec x. Tan inverse 2 cosec x. Tan inverse 2 cosec x. Okay, so left hand side having 2 tan inverse, so we can set up it, because right hand side also given what? Right hand side having tan inverse and left hand side 2 tan inverse. So first of all, here main thing is what? We have to find the value of x. So 2 tan inverse x can be converted to tan inverse x by using 2 tan inverse x formula. So here we use formula tan of inverse of 2 cos x upon 1 minus cos square x, and right hand side tan inverse 2 cosec x. See, because we know 2 tan inverse x equals to tan inverse 2x by 1 minus x square. So in place of x they are cos x. So 2 cos x upon 1 minus cos square x. So implies we can write, now see, on both sides tan inverse. So can we cancel out, and this is equals to this, that is 2 cos x upon 1 minus cos square means sin square x, and here 2 upon sin x. We can write like this, na, because cos x is equals to 1 by sin x. This is equal to 1 by sin x, and tan inverse cancel out, and this is equals to this, and here 1 minus cos square sin square, 2 cos x 2 by sin x. Now just we have to solve this for finding the value of x, not cancel out sin x, just multiply and take single side. Okay, 2 cos x sin x, multiply, cross multiplication, so we can get like this, 2 sin inverse sin square x, implies we can write like this, 2 sin x cos x minus 2 sin square x equals to 0. Not cancel out from sin x and 2 etc., because this is trigonometric equation now. So 2 sin x common, then we can write cos x minus sin x equals to 0. So we get this type of factorization, this into this equals to 0. So either sin x equals to 0, 2 is not equals to 0, so either sin x equals to 0 or cos x minus sin x equals to 0. Okay, so implies sin x equals to 0 or cos x minus sin x equals to 0. Clear?
this. From here x equals to 0. And from here cos x equals to cos x minus sin x equals to 0 means we can write what? Cos x minus sin x equals to 0 means cos x equals to sin x, that is we can write tan x equals to 1, that is x equals to pi by 4. Cos x minus sin x equals to 0, that is this, x equals to what? Pi by 4. We can find like this. So either x equal to 0 or x equal to pi by 4 for this question answer. But x equal to 0, x equal to 0, that is sin x equal to 0 does not satisfy the equation. Because sin x equal to 0 means, here sin x equal to 0 means 1 by sin 1 by 0 infinitive. So sin x equal to 0 does not satisfy the given equation. Therefore answer is what? X equal to pi by 4. हेलो, सबको समझ में आया क्वेश्चन? टेल मी, एनीवन? हेलो, ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? हेलो, यस सर। आ गया ना? ये देखो, ये तो सॉल्व किया बस। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाया, tan इनवर्स दोनों तरफ से कैंसिल, इसको ये लिख दिया, इसको ये लिख दिया, इनटू किया, फैक्टराइज किया, आइदर दिस इक्वल 0 और दिस इक्वल 0, इसको 0 करोगे तो पाई बाय 4 आएगा, इसको 0 करोगे तो sin x इक्वल टू 0 है, सेटिस्फाई नहीं करेगा इसको. सो आंसर इज x इक्वल्स टू पाई बाय 4. since sin x equals to 0 does not satisfy the given equation. Okay, so this is the answer, x equal to pi by 4. इस टाइप का क्वेश्चन प्रोलॉन्ग क्वेश्चन में आता है ना, 3 मार्क्स क्वेश्चन. ओके, नाउ क्वेश्चन 13, then question 14. So see, question 14, this is simple question. इस क्वेश्चन का आंसर तुरंत आ जाएगा, है ना. So tan inverse, here also we have to find value of x. Tan inverse 1 minus x by tan inverse 1 minus x by 1 plus x, half tan inverse x. So tell me, anyone, क्या करना है इसमें? हेलो, tan inverse 1 minus x by 1 plus x. So our target is finding the value of x. So what we can do for this question? Anyone? Hello? What is given? Tan inverse 1 minus x. Tan inverse 1 minus x upon 1 plus x equals to half tan inverse x. Half tan inverse x. So this is given. So we have to find the value of x. So here tan inverse x. So which formula we can use? कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? Anyone, कोई बता सकते हो? हेलो. So here we can use formula tan inverse. We know ये क्या होता है? tan inverse x minus tan inverse y equals to क्या होता है? tan inverse x minus y upon 1 plus xy. This formula can be used here. This is x, in place of x 1, in place of y x. So using this formula we can write what? Tan inverse 1 minus tan inverse x. By using this formula we can write this is equals to this.
tan inverse 1 minus tan inverse x equals to this 1 minus x upon 1 plus 1 into x, and this is equals to half tan inverse x. Now tan inverse 1 means what? Tan inverse 1 pi by 4 equals to half tan inverse x transferred to right hand side, this tan inverse, so this is equals to pi by 4 equals to what? 3 by 2 tan inverse x. So tan inverse x equals to tan inverse x equals to pi by 6. Tan inverse x equals to pi by 6. Okay, so x equals to what? Now tell me anyone, x equals to क्या होना चाहिए? x equals to what? Tan inverse x equals to pi by 6. So x equals to tan pi by 6 equals to क्या है? क्या होता है वैल्यू? tan pi by 6 equals to 1 by root 3. So this is answer. Okay, 1 by root 3. Very simple. Just use the formula, this formula. So पता होना चाहिए ना कहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाया और जल्दी से वैल्यू आ जाए. ओके, सो ये क्वेश्चन 14 था. फिर क्वेश्चन आता है 15. आई थिंक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इज देयर. ओके, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओ. हेलो आशीष, हेलो, क्या करना है बताओ. आंसर क्या होगा ए बी सी डी में से? क्या करना है? साइन टेन इनवर्स एक्स. साइन टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन होना है? 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आर रिमेनिंग ओनली. देखो, एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर कंप्लीट होने वाला है आज. बहुत सारे फॉर्मूला पढ़ लिया है. फ्रॉम टुमारो आई विल स्टार्ट मैट्रिक्स. ओके, 3rd चैप्टर. बट यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन और करेंगे अभी सॉल्व. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आल्सो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला. ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलास आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो टेल मी एनीवन, और भी तो क्लास अटेंड कर रहे हो, कोई तो बताओ, किसी को आता होगा ना. हेलो अंजलि, छाया, रोहन, सृष्टि, अभिजीत, आयुष, आदर्श. टेल मी क्या होना है आंसर, कुछ तो बोलो. हेलो, केवल चालू करके बैठे रहने से होता है क्या? कुछ तो बताना चाहिए कि इतना सारा पढ़ लिए तो अभी क्या होना है? साइन टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू व्हाट? क्या होना चाहिए एबीसीडी में से? साइन टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू, ये वैल्यू बताना है ना? साइन टेन इनवर्स एक्स, साइन टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू, और क्या है? एक्स एंड एक्स के फॉर्म में गिवन है. सो साइन टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू क्या करना चाहिए यहां पर? इसकी जो वैल्यू है एक्स के फॉर्म में लाना है. छाया बोलो. Sir, we can use this tan inverse x equals to sin inverse x upon root 1 square, 1 plus x square. 1 प्लस मीन्स टेन इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है ना. कन्वर्सन सिखाया था ना. मीन्स इधर साइन लिखा है तो साइन इनवर्स करोगे तो क्या होगा? फिर दोनों कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगा. ये यही मीनिंग है ना. हेलो, गुड गुड, तुमने सोचा कम से कम, है ना. ओके, तो ये क्या होना है? साइन टेन इनवर्स. तो हमको एक्स के फॉर्म में वैल्यू लिखना है. अगर एक्स के फॉर्म में वैल्यू लिखना है तो यहां पर क्या करें? यहां साइन है और यहां पर क्या करें? साइन इनवर्स आ जाए. हम ये सोचते हैं यहां साइन इनवर्स आ जाए. तो एनी ट्रिग्नोमेट्रिक function can be transferred to any other trigonometric function, we know ना.
टेन इनवर्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू क्या होता है? टेन इनवर्स एक्स मीन्स व्हाट? टेन इनवर्स एक्स है, तो एक्स मीन्स एक्स बाई वन. सो ये क्या हुआ? परपेंडिकुलर बाई बेस. परपेंडिकुलर बाई बेस. सो टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, यहां पर लिखना है अभी साइन इनवर्स ऑफ, ये परपेंडिकुलर बाई बेस है. दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस. सो साइन इनवर्स क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस. सो परपेंडिकुलर एक्स है, hypotenuse, if this is perpendicular, this is base, then we can write hypotenuse root over both addition of these two square. So root over 1 plus x square. ये होना है. Since this, so we can write this is equals to what? This is equals to sine of sine inverse 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ये कन्वर्शन किया और साइन साइन दोनों कैंसिल हो गया, तो एक्स अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर. सो व्हाट इज द आंसर? ए बी सी डी. आंसर क्या है? डी. एक्स अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर. क्लियर हुआ? हेलो, यस सर. डी इज आंसर. Now, next question. ये दिस क्वेश्चन इज नियर अबाउट 3 मार्क्स क्वेश्चन. ये बहुत सिंपल क्वेश्चन नहीं है, लॉन्ग क्वेश्चन है. सो वी हैव टू सॉल्व इट. सो एनीवन कैन गिव एनी आइडिया? क्या, कहां से स्टार्ट करें, क्या करें बताओ? इसमें भी ऑब्जेक्टिव दिखाना है. Suppose you are having book and you can see the answer, but answer is not main thing. How can we solve it? यहाँ भी x की वैल्यू फाइंड करना है. Given relation is c sin inverse 1 by x, sin inverse 1 minus x minus 2 sin inverse x equals to pi by 2. This is given and we have to find the value of x. 3 marks question you can suppose. Okay, so question solution here given. What is given? Given sin inverse. So sin inverse of 1 minus x minus 2 sin inverse x. 2 sin inverse x equals to pi by 2. This is given and we have to find the value of x. Sin inverse 1 minus x minus 2 sin inverse x. Clear? So this is given. यहां पर सब्स्टिट्यूशन हम कर लेते हैं. क्या करेंगे? साइन इनवर्स ऑफ दिस, साइन इनवर्स ऑफ दिस. सो लेट साइन इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा, दैट इज x इक्वल्स टू साइन थीटा. सपोज कर लिया हमने x साइन इनवर्स x को क्या सपोज किया? थीटा सपोज किया. क्लियर है? साइन इनवर्स को थीटा सपोज किया x. सो वी कैन राइट साइन इनवर्स 1 माइनस x इक्वल्स टू साइन थीटा. दिस इज साइन थीटा, दिस इज साइन थीटा माइनस 2 थीटा. साइन इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा, सो इक्वल्स टू पाई बाई 2. आवर टारगेट इज व्हाट? फाइंडिंग वैल्यू ऑफ x. ये हुआ साइन इनवर्स x. सो हियर साइन इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू, जस्ट ट्रांसफर दिस, पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा. अब इसको सॉल्व करने के लिए आगे कैसे बढ़ना है? एनीवन कुछ बस इतना बता दो क्या करना है. अभी कैसे करें? मतलब सॉल्व करने जाएंगे ना, कोई नया क्वेश्चन सामने आएगा तो सॉल्व कैसे करें? केवल 10-20 क्वेश्चन को रट लेने से नहीं होता है ना. अब आगे कैसे करें बताओ? चलो सब्स्टिट्यूशन बता दिया. सो अभी क्या करना चाहिए? हेलो, कोई भी आइडिया दो, क्या करना चाहिए? इधर 90 प्लस 2 थीटा, सो इधर से साइन इनवर्स को इधर ले जाओ तो साइन 90 प्लस 2 थीटा हो जाएगा.
सो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा. So sin pi by 2 plus 2 theta means what? Sin 90 plus theta equals to क्या होता है? हेलो, रिप्लाई करो कोई ना कोई. cos क्या लिखूं? यहाँ क्या लिखूं? cos of what? 2 theta ना? cos of 2 theta. ओके. अब देखो इधर लिखा है 1 माइनस साइन थीटा, यहां लिखा है cos 2 थीटा. सो उसको भी साइन में चेंज करें. cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है साइन में? 1 माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू cos 2 थीटा इक्वल्स टू इन टर्म्स ऑफ साइन क्या होता है? हेलो, cos 2 थीटा, फॉर्मूला ऑफ cos 2 थीटा, फॉर्मूला ऑफ cos 2 थीटा cos 2 theta equals to what is the formula in terms of sine? 1 minus 2 sin square theta. 1 minus 2 sin square theta. Good. Okay. अब क्या होना है? अब 1 1 कैंसिल, 2 को इधर लाओ, 2 sin square theta. 2 टारगेट क्या है? वो x की वैल्यू फाइंड करना है. मींस यहाँ sin theta की वैल्यू फाइंड करना है. So 2 sin square theta. x means sin theta. तो 2 sin square theta minus sin theta equals to 0. So ये जो sin theta है, sin theta means what? x. So लिख देते हैं 2x square minus x equals to 0. अब x की वैल्यू फाइंड करना है. और x की वैल्यू फाइंड करना है तो x की वैल्यू यहाँ पर फैक्टराइजेशन है तो x कॉमन ले लिया, 2x minus 1 equals to 0. So x equals to 0 और x equals to half. इन दोनों में से एक सॉल्यूशन होगा और वही ऑप्शन होना है. सो 0 होगा कि हाफ होगा. सी द गिवन इक्वेशन को देखो पहले. गिवन इक्वेशन में अगर हाफ लिया जाए, गिवन इक्वेशन में क्या लिया जाए? हाफ. मतलब x के जगह पे अगर हाफ ले लेते हैं. इक्वेशन क्या है? गिवन इक्वेशन साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, ऐसा है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2. ये गिवन है. अब यहां पर x के जगह पर हाफ लेने से, अगर x के जगह हाफ लिया जाए तो ये सेटिस्फाई हो रहा है क्या? मींस अगर x के जगह हाफ लेंगे तो क्या होगा? 1 माइनस हाफ, हाफ हो जाएगा माइनस, और फिर यहां भी हाफ, माइनस 2 साइन इनवर्स हाफ. ये ले लिया. x की जगह पे हाफ लिया तो यहाँ हाफ आ गया, यहाँ पर भी हाफ लिया तो ये हाफ आ गया. सो हाफ ऑफ दिस, ये क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स हाफ माइनस 2 साइन इनवर्स हाफ. सो माइनस साइन इनवर्स हाफ इक्वल्स टू पाई बाई 2. ये नहीं होगा बिकॉज नेगेटिव साइन इज देयर, इधर राइट साइन पॉजिटिव, सो नहीं होना है. नॉट सेटिस्फाइड. सो व्हाट इज द आंसर? x would half does not satisfies given equation. So answer is what? X equals to 0. Means कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? हेलो, C ऑप्शन करेक्ट. So this question is also likely to be 3 marks question. Okay. So question option C is correct. C 0. Clear? Now last question of this exercise. That is question 17. Na? Question 17. It is very simple question. Very simple. So what will be the answer? So tell me. देखो हाफ 1 मिनट लगना है, सॉल्व करो सब लोग. सबको बोला पढ़ने के लिए बैठो कॉपी पेन लेके. So tell me the answer. क्या होगा इसका? लास्ट क्वेश्चन है मिसलेनियस का.
Which formula will be used for this? Sir, tan inverse x minus tan inverse y equals to tan इनवर्स, ये तो tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b फॉर्मूला लगेगा, ये तो वेरी क्लियर है, एकदम एकदम क्लियर है ना. सो डू इट, आंसर बताओ क्या होना है, एकदम सिंपल तो है. tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y फॉर्मूला इज यूज्ड. सो क्या होना है, tan इनवर्स आ जाएगा और बीच में क्या होना है, tan इनवर्स x माइनस y, x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy. x के प्लस में क्या है, x बाई y है. tan इनवर्स x माइनस है, सो माइनस x माइनस y बाई x माइनस y अपॉन x प्लस y अपॉन 1 माइनस माइनस है तो यहाँ प्लस x बाई y इंटू x माइनस y अपॉन x प्लस 1 y. सो दिस इज इक्वल्स टू, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू. चलो बताओ क्या होना है और आंसर कौन सा ऑप्शन आएगा. c pi by 4. यहां पर ये इसको सॉल्व करने से 1 आ रहा है कि नहीं, एलसीएम लेंगे सॉल्व करेंगे 1 आ जाएगा, आ रहा है ना. हेलो, Yes, sir. पाई बाई 4 आंसर, Yes, sir. पाई बाई 4 में दैट मींस सी इज द आंसर. ठीक, सी इज द आंसर. ना ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है, ठीक है. सो मैं अभी टाइम है, जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ना, सब लोग तो बुक बताने में बहुत खुश होते हैं कि मेरे पास बहुत मोटा मोटा बुक है, आर डी शर्मा है, ये है वो है ना. चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अभी हम लोग, कितना टाइम लगता है देखते हैं. ठीक है. प्रूव दैट tan इनवर्स tan ऑफ हाफ साइन इनवर्स 3/4 इक्वल्स टू 4 माइनस रूट 7/3. सो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड लाना है. ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड लाना है, इसको सॉल्व करके हमको दिखाना है. ओके, सबको क्वेश्चन दिख रहा है. हेलो, Yes, sir. क्वेश्चन दिख रहा है. ओके, अब सॉल्व करने के लिए कौन सा स्टेप उठाना है, टेल मी एनीवन, कुछ बताओ तुम लोग. इसमें बताओगे कुछ तब तो होगा. अब ये एक्सरसाइज क्या नहीं है, ये मैं लिया हूँ, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इस टाइप के ढेरों क्वेश्चन होते हैं, कुछ टारगेट तो होना चाहिए, किस कैसे करें क्या करें, कहाँ से स्टार्ट करें. प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड ना. एक यहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग. लेफ्ट हैंड साइड जो है व्हाट, tan ऑफ हाफ साइन इनवर्स 3/4, साइन इनवर्स 3/4, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड ना. सो दिस, इसी के तो वैल्यू निकालना है. सो लेट दिस इज इक्वल्स टू x. अब हमको सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करना है. अब हमको सॉल्व करके क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है. ओके, अब इस टाइप का दिख रहा है, वी नो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला. सो tan को उधर ले जाते हैं, हाफ साइन इनवर्स 3/4 इक्वल्स टू tan इनवर्स x. ना नेक्स्ट स्टेप क्या उठना चाहिए, अब बताओ कोई ना कोई, आगे कैसे करें. आदर्श बताओ, अभिजीत, सृष्टि, कुछ तो बताओ तुम लोग. हेलो, अंजलि, फोन बंद करके गायब, मैंने चालू करके गायब. सृष्टि, हेलो, हेलो, आदर्श, सर 2 को 10 में भेज देंगे. टू को 10 के साथ, फिर क्या करना है. सर 10 को sin by cos में कन्वर्ट करेंगे. भाई 2 जब
जब उधर जाएगा तो टू टेन इनवर्स हो जाएगा, टू टेन इनवर्स का फॉर्मूला लगा सकते हैं ना। और कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए? टू टेन इनवर्स का तो 3 फॉर्मूला होता है। अब तो 2 को इधर ले जाएंगे, टू टेन इनवर्स एक्स होगा, इसका फॉर्मूला लगा देंगे। पर टू टेन इनवर्स एक्स का 3 फॉर्मूला आते हैं, साइन में, कॉस में, टेन में। कौन सा यूज करना चाहिए? कौन सा यूज करना चाहिए? हाँ, कौन सा वाला? हेलो, साइन वाला। साइन इनवर्स 3/4 इक्वल्स टू 2 टेन इनवर्स एक्स। अब जब ऐसा दिख गया ये तो वेरी क्लियर है, इधर साइन इनवर्स है, इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट करो। इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट करोगे तो फॉर्मूला क्या होता है इसका साइन इनवर्स वाला? साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस की प्लस प्लस फॉर्मूला 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अगर ऐसा होता है तो अब क्या करें? साइन इनवर्स खत्म हो गया। 3/4 इक्वल्स टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब 10th लेवल का चीज है, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो, ऐसे मल्टीप्लाई करो, एक तरफ ले जाओ, x की वैल्यू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से वैल्यू मत बताओ क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई इट एंड यू कैन गेट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हाट विल बी द क्वाड्रेटिक इक्वेशन? और इसको सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालो, क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन? कुछ मेहनत करो, सॉल्व करो, अभी लास्ट है। ये तो ढेरों क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के, है ना। ऐसे वैसे करके इनटू कर देना है। क्या होना है? 3x स्क्वायर इधर जाएगा ना, 3x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3, उधर ये 4 को उधर इनटू होगा, माइनस 8x प्लस 3 और प्लस क्या होना है अभी? 3 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। नाउ फ्रॉम हियर वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू, वो जो फॉर्मूला लगता है ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2a, वो लगा के क्या वैल्यू आएगा? इसको सॉल्व कर लेना है। माइनस b इस टाइप से जैसे भी सॉल्व करना हो, यही है ना इक्वेशन। सो डू इट। क्या होना है बताओ? कोई ना कोई बताओ। रफ में कर लेना है, फट से लिख देना है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। x इक्वल्स टू 4 प्लस माइनस रूट 7/3, 4 प्लस माइनस रूट 7/3। कोई भी अगर सीरियसली पढ़ने बैठे हो ना तो बताओ ये आएगा कि नहीं? यूज करना है ना। माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर बाई माइनस 4ac/2a, ये जो फॉर्मूला होता है ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू -8, c इक्वल्स टू 3, सो x इक्वल्स टू, using this x equals to a equals to 3, b equals to -8, c equals to 3, x equals to this 4 प्लस माइनस रूट 7/3। क्लियर हुआ? अभी देखो सॉल्व करना है बस, ये बाई क्वाड्रेटिक की फॉर्मूला यूज करो, ये वैल्यू आ गया। अब x की वैल्यू जो प्रूफ क्या करना था, दिस इज इक्वल्स टू x, मतलब इसी की वैल्यू, x की वैल्यू मतलब यही वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू, क्वेश्चन में क्या दिया 4 माइनस रूट 7/3, प्लस वाला कैंसिल होने वाला है, वो ये कैसे प्रूव होगा? सो इस प्लस को कैंसिल करने का जो पोर्शन है वही पोर्शन को मिलाने से 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। ओके, सो x इक्वल टू 4 प्लस माइनस रूट 7/3। नाउ प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, सो माइनस वाला दिया होगा, प्लस वाला नहीं है। सो कैसे हम प्रूव करें इसको, ये प्लस वाला लेट, अब क्या सॉल्व कर रहे हैं कि इसमें से प्लस वाला कैंसिल कैसे हो रहा है। लेट tan ऑफ थीटा, दिस इज इक्वल टू थीटा, लेट हाफ साइन इनवर्स 3/4 इक्वल्स टू थीटा।
देन x इक्वल्स टू क्या हो गया, टेन थीटा। हमको क्या जज करना है कि x की वैल्यू प्लस वाले मतलब प्लस आया कि माइनस है। तो x की वैल्यू का रेंज देखना है कि कितने के बीच में है x की वैल्यू। सो ये टेन ऑफ दिस इज x, इसको सपोज शॉर्टकट में लिख लिया थीटा। सो टेन थीटा, x मतलब टेन थीटा, x मतलब टेन थीटा। ओके ना, एंड यहां से सॉल्व करें, यहां से इसको सॉल्व करें। इसको सॉल्व करने से क्या होता है, इसको ये 2 उधर चला जाएगा। साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 3/4, साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 3/4, साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 3/4। 3/4 की जो वैल्यू है, 3/4 की वैल्यू साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 3/4, दैट मीन्स 2 थीटा यहां पर साइन 2 थीटा इक्वल टू 3/4, 3/4 इज लेस देन 1। सो ये जो 2 थीटा है, 2 थीटा की वैल्यू 3/4 मीन्स प्लस में वैल्यू है। सो ये 2 थीटा लाइज बिटवीन 0 टू π/2 90 डिग्री, ये वाले पोर्शन में, ये वाले पोर्शन में, ठीक है। सो यहां पर यहां से निकलेगा अभी 0 लेस देन थीटा इज लेस देन π/4। वो 2 से डिवाइड किया वहां पर। सो क्या हो गया, थीटा लाइज बिटवीन 0 टू π/4, थीटा लाइज बिटवीन 0 टू π/4, दैट मीन्स टेन थीटा लाइज बिटवीन टेन ऑफ π/4 10। अब क्या, 0 थीटा π/4 सभी में 10 लगा दिया। सो टेन थीटा लाइज बिटवीन 10 0 एंड 10 π/4, दैट इज क्या हो जाएगा, 10 0 मीन्स 0 इज लेस देन 10 थीटा इज लेस देन 1, 10 π/4 1, दैट इज 0 लेस देन x लेस देन 1, x लाइज बिटवीन 0 टू 1, x की जो वैल्यू है 0 टू 1 के बीच में होना चाहिए। x मीन्स दिस जो रिक्वायर्ड वैल्यू है, ये वैल्यू 0 टू 1 के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पर प्लस लेना चाहिए कि माइनस लेना चाहिए, हेलो टेल मी। देखो ये वैल्यू आया था x की वैल्यू 4 ± √7/3। अब x लाइज बिटवीन, x मीन्स दिस, x लाइज बिटवीन 0 टू 1, 1 से लेस होना चाहिए। सो यहां से प्लस लेना चाहिए कि माइनस लेना चाहिए, since 0 less than x less than 1, so x equals to क्या लिखो यहां पर, अभी बताओ, हेलो। वो तो सॉल्व करके बताया ना, x लाइज बिटवीन 0 टू 1। सो x की वैल्यू क्या होना चाहिए, इसमें प्लस होना चाहिए कि माइनस। प्लस होने से क्या होगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। सो माइनस साइन लेना है, 4 − √7/3, हैंस प्रूव्ड। वही तो है, दिस इज इक्वल टू x। सो x मीन्स व्हाट, दिस implies 10 of half sin inverse 3/4 equals to 4 − √7/3। So this is proved, x equal to this। समझ में आया ना, हेलो आया समझ में, हेलो यस सर। आप देखो कि एक क्वेश्चन और सामने रखा हूं। अब बताओ, ये अलग अलग टाइप के ढेरों क्वेश्चन होते हैं। अब एनसीईआरटी से हट कर है ना, इसमें बताओ बहुत सारे लोग सोचो क्या करना चाहिए। पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा छोटा है ना, टेंशन नहीं है कोई, हो जाएगा सॉल्व। सो बताओ कैसे करना है। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला, 10a - b का फॉर्मूला, यू नो 10a + b 10a - b, उसको यूज करना है यहाँ पर। दैट इज 10a मीन्स π/4। देखो क्वेश्चन में दिया है π/4 प्लस समथिंग, और दूसरे वाले में दिया है π/4 माइनस समथिंग।
वो जो समथिंग है वो दोनों सेम है, उसी को एक ए मान लो या थीटा मान लो, कुछ भी, और यू कैन डू इट, है ना। सो क्या करें इसके लिए, लेट वो जो पाई प्लस हाफ कॉस इनवर्स ए बाई बी, हाफ कॉस इनवर्स ए बाई बी इक्वल्स टू थीटा। सपोज कर लीजिए ये जो हाफ कॉस इनवर्स ए बाई बी इक्वल्स टू थीटा ले लिए, थीटा लिखो, ए बी सी डी कुछ भी लिख लो, टाइम भी लिखना है, वो तो बाद में फिर रिटर्न करना है ना, वैल्यू को तो रिटर्न भी करना है बाद में। ओके, सो लेट दिस, देन अगर ये हम सपोज करें तो क्या हो जाएगा फिर, इसका लेफ्ट हैंड साइड जो गिवन है उसका लेफ्ट हैंड साइड, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू 10 ऑफ क्या होना है, पाई बाई 4 प्लस थीटा प्लस पाई बाई 4 माइनस थीटा, 10 ऑफ पाई बाई 4 माइनस थीटा। बस ये दोनों क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन ये दोनों है 10a प्लस बी 10a माइनस बी, सो यू कैन यूज द फॉर्मूला 10a प्लस बी एंड 10a माइनस बी। ओके, 10a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कोई ना कोई बताओ, फिर यूज करते हैं। 10a प्लस बी इक्वल्स टू व्हाट, क्या होता है 10a प्लस बी, 10a plus 10b 1 minus 10a 10b। यस, माइनस में ऊपर नीचे चेंज हो जाता है साइन ना। सो हियर क्या होना है, 10 पाई बाई 4 10a प्लस 10b अपॉन क्या लिखे यहां पर, फिर 1 माइनस 10 पाई बाई 4 इंटू 10 थीटा। सिमिलरली वही चीज लिखना है और केवल साइन चेंज है ऊपर नीचे ना, 10 पाई बाई 4 माइनस 10 थीटा अपॉन 1 प्लस 10 पाई बाई 4 इंटू 10 थीटा। अब इसको सिंप्लीफाइड करना है ना, ये देखो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस 10 थीटा, 1 प्लस 10 थीटा, 1 प्लस 10 थीटा अपॉन 1 माइनस 10 थीटा प्लस 1 माइनस 10 थीटा अपॉन 1 प्लस 10 थीटा। अब इसको एलसीएम लेना है तो 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं, एलसीएम ले लिए 1 ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 10 थीटा 1 प्लस 10 थीटा होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 10 थीटा होल स्क्वायर। या ऊपर में सॉल्व करने के बाद वैल्यू क्या आना है इतना बता दो। देखो क्या होना है, ये एलसीएम ले लिए, ये हो गया ये हो गया ये हो गया, 1 स्क्वायर प्लस 2 10 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा, 1 स्क्वायर माइनस 2 10 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा। सो ऊपर में वैल्यू क्या आना है, 2 बार 1 आएगा, 2 बार 10 स्क्वायर थीटा आएगा, प्लस 10 थीटा माइनस 10 थीटा वो वाला कैंसिल हो जाएगा। सो वैल्यू क्या बन गया, 2 प्लस 2 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। Now this is equals to क्या हो जाएगा, 2 ऑफ 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। ओके, ये बन गया। अब इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करें, इसको भी साइन बाई कॉस लिखो, इसको भी साइन बाई कॉस लिखो। सो क्या हो जाएगा ये 2, बिकॉज टारगेट ये है कि सॉल्व करके दिखाना, सिंप्लीफाइड करना है। सो यहां पर क्या होना है, साइन कॉस करना है, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर। सो इधर कॉस स्क्वायर इधर कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अपॉन
कॉस स्क्वायर, नीचे भी कॉस स्क्वायर आएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ आएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नाउ दिस इज इक्वल टू 1, ऊपर में 1 हो गया, नीचे क्या 2 थीटा से रिलेटेड फॉर्मूला बताओ, कोई ना कोई तो बता दोगे, तो पक्का है। टेल मी, ये तो 1 हो गया, ये cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2 थीटा के टर्म्स में कुछ फॉर्मूला होता है? हेलो 8 10 20 तक की क्लास है ना? हाँ, Sir, cos 2 theta. cos 2 थीटा, गुड, cos 2 थीटा, ओके, ये हो गया cos 2 थीटा, cos 2 थीटा आ गया। अभी हमारा टारगेट क्या था इसमें? टारगेट था प्रूव करना है 2b बाई ये आना चाहिए। तो अभी क्या यूज कर सकते हैं बताओ, कुछ दिख रहा है? आ तो गया, सॉल्व तो हो गया, बताओ मेरे को क्या करना है? 1 लाइन तो है, एक ही लाइन तो बचा है और खत्म भी हो गया। ओके, टेल मी, एनीवन टेल मी, एंडिंग करते क्लास। ओके, क्या करना Sir, है? the value of यहाँ देखो ना 2 थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स a बाई बी ना, बस पुट करना है वैल्यू यहाँ पर 2 1 अपॉन cos ऑफ 2 थीटा, यहाँ से 2 थीटा देखो 2 थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स a बाई बी। सो आल्सो यू कैन राइट लाइक दिस 2 इनटू थीटा की वैल्यू लग गई हाफ cos इनवर्स a बाई बी, cos इनवर्स a बाई बी, ये हो। अब 2 2 कैंसिल, cos इनवर्स वो भी कैंसिल, a बाई बी, b ऊपर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। सो 2b बाई a, दिस इज राइट हैंड साइड। क्लियर हुआ? हेलो, Yes, sir.